हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस, जिसके अंदर 6 स्टैंडर्ड्स हैं 500, 501, 505, 510, 530 एंड 550। तो इन 6 स्टैंडर्ड्स के ऊपर 3 केस स्टडी हैं जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में एज सच कवर की गई है। तो इस सेशन में हम उन तीनों केस स्टडी को कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट केस स्टडी एसए 500, 501, 505 एंड 510 पर बेस्ड है। सेकेंड केस स्टडी 550 पर बेस्ड है। थर्ड केस स्टडी 501 एंड 505 पर बेस्ड है। तो इन केस स्टडीज के थ्रू आप एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लस 500 सीरीज के स्टैंडर्ड्स की कुछ एक्सटेंट तक रिवीजन भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 5। ऑनेस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ 1000 करोड़ टर्नओवर कंपनी। प्राइवेट कंपनी है, 1000 करोड़ की टर्नओवर है। Having plants in Khopoli, Mahad and Ankaleshwar for manufacturing various products for fertilizer unit, cosmetic, paint industry, etc. Company has built up a good reputation, and apart from the domestic market, it export to the European market and the Middle East. Company is a closely held company owned by 3 friends and their family member. The type of materials handled and produced are hazardous in nature. Following further latest information relating to the company is as under. The company needs to import the key raw material and is exposed to high risk of price fluctuations and currency risk. ये बिजनेस के ऑपरेटिंग रिस्क हैं। कंपनी कैरी हाई इन्वेंट्री due to long import cycle and seasonal sales pattern. Working capital is almost 60% blocked in inventory and rest in receivable. Company has huge investments in plant and machinery financed through the term loans from the financial institution. Since company has large import, it buy import license from the open market. Company has received custom notice about fake license for importing material without paying duty. Company has filed an appeal against the notice and the same is pending with the appellate tribunal. The amount involved is material, and along with interest and penalty, it could be more than 10% of the turnover. Penalty का amount. The company has liquid chemicals stored in huge tanks. Powered form of chemical is stored in standard size drum. Few item of stock like coal, sulfur lying in open area. Company has huge domestic sales on consignment basis and vast quantity of finished goods inventory lying with the consignee. कंपनी को एक ऑर्डर मिला फ्रॉम एनजीटी, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नोटिस लिखना चाहिए था, ऑर्डर की जगह ज्यादा बेटर होता। फाइन है 1.5 करोड़ रुपीस का फॉर एमिशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द एयर एंड वाटर। कंपनी ने अपील फाइल की इसके अगेंस्ट। एक कस्टम नोटिस मिला था, एक एनजीटी से ऑर्डर आया है। The type of plant is such, it has to be a continuous process and at any time huge quantity of material are in process. WIP भी बहुत ज्यादा है। रॉ मटेरियल ह्यूज टैंक्स में स्टोर्ड होता है, लोकेटेड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लांट, and to transport the chemical there is a network of pipes connecting them. At any point of time there are huge quantity of material lying in the pipeline.
पूरा क्वेश्चन बेसिकली मटेरियल के ऊपर है। बहुत सारा मटेरियल WIP में पड़ा है, बहुत सारा मटेरियल पाइपलाइंस के अंदर पड़ा है, बहुत सारे फिनिश गुड्स कंसाइनी के पास पड़े हैं। कंपनी ने इन्वेंट्री डिटेल्स प्रिपेयर की इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन करता है एंड न्यू ऑडिटर गॉट अपॉइंटेड। ये तो केस के फैक्ट्स आ गए हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। क्वेश्चन क्या क्या चीजें हमसे रिक्वायर करता है। नंबर 1, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी कम होगी एज पर SA 500। हम जिस इंफॉर्मेशन को एज ए ऑडिट एविडेंस ट्रीट करते हैं वो इंफॉर्मेशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी or that information may be produced by the entity using the work of management expert. If the information is being produced using the work of management expert, we need to evaluate competence, capability and objectivity of the expert. We need to obtain an understanding of the expert's work. We need to evaluate the appropriateness of the work of the expert for our audit purposes. But अब जो पहला पॉइंट आ जाता है कि हमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट करना है, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी कम होगी यदि वो कंपिटेंट है तो ऑब्जेक्टिविटी क्यों कम होगी? यदि वो कैपेबल है तो भी उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्यों कम होगी? यदि उसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो भी उसकी ऑब्जेक्टिविटी का इससे क्या लेना देना? यदि वो कंपनी का एम्प्लॉय है, डेफिनेटली यहां पर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम होगी बिकॉज ही हैज टू वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, which of the following matter is irrelevant for the auditor in planning attendance at physical inventory count? SA 501 क्या कहता है? In relation to inventory, auditor is required to collect the sufficient appropriate audit evidence as to the existence and condition of the inventory, and for that purpose he need to ensure his attendance at the time of management count procedures. तो जब वो अपनी इस एक्टिविटी को प्लान कर रहा है कि when the management will carry out the inventory counting, I will attend that activity, तो इनमें से किन किन मैटर्स को उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग दिस प्लानिंग? नेचर ऑफ इन्वेंट्री, डेफिनेटली ये एक रेलिवेंट मैटर है जो मेरी प्लानिंग को कंट्रोल करेगा। टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ये भी मेरे लिए रेलिवेंट है कि जिस टाइम पर मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट करा रही है मेरी क्या अवेलेबिलिटी है। नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, ये भी रेलिवेंट है। जितने ज्यादा इंटरनल कंट्रोल होंगे उतना कम मुझे अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। वेदर 100% ऑफ द इन्वेंट्री इज कवर्ड इन द काउंट, ये चीजें मेरी प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है। मैं जब अपनी अटेंडेंस को प्लान कर रहा हूं, नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, टाइमिंग ऑफ द इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर, नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, these are the relevant factors that I need to consider while planning my attendance at the time of inventory count. But whether the 100% of the inventory is covered in the management count procedure or less than 100% of the inventory count is covered, ये प्लानिंग की स्टेज पर मेरे लिए कोई कंसीडरेशन नहीं रखता।
तो इररेलीवेंट की बात हो रही है, डी पॉइंट इररेलीवेंट है। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस फॉर द रिसीवेबल आर नॉट रिलायबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ऐसे 500 पर बेस्ड हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन। किन सिचुएशन में जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने ली है, किन से, रिसीवेबल से, वो रिलायबल नहीं होगी। जब आपको थर्ड पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी पर कोई डाउट है या ये कंफर्मेशंस जो आपने कलेक्ट की वो मैनेजमेंट के थ्रू कलेक्ट की है, तो रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाती है। रिस्पॉन्स डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द ऑडिटर, ये ज्यादा रिलायबल मानी जाती है। रिस्पॉन्स डायरेक्टली ऑडिटर रिसीव कर रहा है। कंफर्मेशन कम फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी, इसका मतलब कंफर्मिंग पार्टी से कंफर्मेशन आ रही है डायरेक्ट, ये भी रिलायबल है। कंफर्मेशन इज साइंड बाय द प्लांट मैनेजर, कंपनी का स्टाफ साइन कर रहा है कंफर्मेशन को। मैंने कंपनी की कंफर्मेशन एक्सटर्नल पार्टी से मांगी थी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सटर्नल पार्टी से मांगी थी। हाउ इट कैन बी साइंड बाय द प्लांट मैनेजर, गड़बड़ है। कंफर्मेशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कंफर्मेशंस आर कंसीडर्ड मोर परसुएसिव एज कंपेयर टू नेगेटिव कंफर्मेशन, तो ये तो ज्यादा रिलायबल होगी। तो इसका आंसर ये है, ये नॉट रिलायबल कैटेगरी है, बीइंग साइंड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द एंटिटी। The new auditor planned certain procedures with respect to the opening balances. Which of the following procedure is not in accordance with SA 510? SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। पुराना ऑडिटर रिजाइन करके गया है, उसकी जगह नया ऑडिटर आया है, वो ओपनिंग बैलेंसेस के प्रोसीजर्स को प्लान कर रहा है। तो इसमें से क्या चीज 510 के अंदर कवर नहीं होने वाली? रीडिंग द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, ये डेफिनेटली कवर होगी। वेदर द प्रायर पीरियड रिपोर्ट इज मॉडिफाइड, प्रायर पीरियड की मॉडिफिकेशन करंट पीरियड के लिए तो बहुत ज्यादा रेलिवेंसी रखती है। करेक्टली ब्रिंगिंग फॉरवर्ड ऑफ प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस, ऑफ कोर्स दिस इज ए रेलिवेंट वन। Ascertaining whether the predecessor auditor has attended physical inventory count, पुराने ऑडिटर ने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड किया था या नहीं किया था, उसका ओपनिंग बैलेंसेस के रेफरेंस में कोई रेलिवेंसी नहीं बनती है। तो डी पॉइंट इसका आंसर है। तो देखा जाए तो ये जो केस में इतने सारे, ये पूरा का पूरा केस स्टडी था, इसमें इतना टाइम लगाया हमने, ये रॉ मटेरियल जहां है, ये WIP है, ये XYZ, अरे तुम डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते, हम तभी कर देते। इस केस स्टडी की कोई रेलिवेंसी ही नहीं आई। चलिए, बट केस स्टडी पहले पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। तीनों केस स्टडी ये ICAI के स्टडी मटेरियल की है। ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड विद मिस्टर भरोसे लाल एज मैनेजिंग डायरेक्टर along with his wife Maya owned the company. Company has plotted one SPV Real Trust Developer Private Limited in which a foreign entity become a joint venture partner with 50% stake. The venture was formed with its head office in Mumbai to invest in SRA project Slum Rehabilitation Authority and develop them into commercial units for the sale. Mr. Bharose Lal was going through the rough patch in his life. He was in financial difficulty and had mounting dues and huge outstanding exposure to bank and supplier in his company. Mrs. Maya was from a very wealthy family and fallen in love with Mr. Bharose Lal, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। पर्सनल कहानी किस लिए दे रहे हो? Mrs. Maya had an expensive lifestyle and always remains short of fund to maintain her lifestyle. Mr. Bharoselal sensed a golden opportunity in the new venture because the foreign partner had no knowledge of Indian regulation, ताकि उसको उल्लू बनाया जा सके, and how the SRA projects work
एंड फॉरेन पार्टनर सोलली डिपेंडेंट होगा लोकल पार्टनर पर टू गेट ऑल द परमिशन, स्काउटिंग फॉर द प्रोजेक्ट, गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द स्लम डेवलपर्स, गिविंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड अदर मिसलेनियस. ओके. ABC and Company Chartered Accountant appointed as the auditor of the joint venture engagement team headed by Mr. Skeptic, who had in his stint with the firm was instrumental in unearthing two major fraud and had the ability to sniff out any such scenario. Mr. Broselal has a dominant personality and powerful influence on the functioning, and everybody looks to him for guidance. The governance structure was very poor in the organization, and Broselal used to dictate the decision. Even though as part of the joint venture there was a detailed governance structure and policies and the procedures for the decision making at the joint venture, however, the representative on the board of the joint venture of the foreign partner had shifted to India. अब आया मजा. फॉरेन पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव्स जो ज्वाइंट वेंचर के बोर्ड के ऊपर थे वो इंडिया में आ गए. दे हैड शिफ्टेड टू इंडिया टू सुपरवाइज द SRA प्रोजेक्ट एंड ग्रोन फ्रेंडली विद मिस्टर भरोसेलाल. Bharoselal had even gone out of the way to help him with good accommodation and second hand Mercedes. लो जी, familiarity relation आ गई. Often they both go to a club in the evening for the drink. Dealing in the SRA projects are not very transparent and above board but are very opaque. Given the above situations, Skeptic want to discuss with the audit team the area and situation where risk of material misstatement is possible and the chances of having an undisclosed related party relationship to misappropriate the funds. तो एक भरोसेलाल है, एक उनकी धर्मपत्नी है माया देवी. माया देवी का एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है, भरोसेलाल एक वेरी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है और इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया है किसके साथ, एक फॉरेन पार्टनर के साथ. किस लिए? SRA प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट के लिए, एक स्लम रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट था. बस अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेथड दैट मिस्टर भरोसेलाल कैन इंडल्ज टू कमिट द फ्रॉड? कंसीलिंग and not disclosing the fact that could affect the amount recorded in the financial statement. छुपाना, फैक्ट्स को डिस्क्लोज ना करना जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट रिकॉर्डेड है वो अफेक्ट होंगे. एंगेजिंग इन द कॉम्प्लेक्स ट्रांसेक्शन to misrepresent the financial position or the financial performance of the entity, causing the entity to pay for the goods or the services that are not received. सारे ही फ्रॉड है. Using undisclosed business partners to misappropriate the funds in the guise of making a business transaction and thereof siphoning of the funds. यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको बेस्ट मेथड भरोसेलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉड में इंडल्ज होने का क्या नजर आ रहा है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अमाउंट को छुपा जाना फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंडिकेट करता है. Engaging in the complex transaction to misrepresent the financial position or the financial performance, again fraud financial reporting को indicate करता है. Causing the entity to pay for the goods or the services not received, again एक फ्रॉड को इंडिकेट करता है. लेकिन ये जो तीनों फ्रॉड हैं, ये तीनों के तीनों फ्रॉड जनरल नेचर के अंदर फॉल कर रहे हैं. बट जो हमारा फोर्थ केस है वो स्लाइटली डिफरेंट है फर्स्ट थ्री केसेस से.
जो फोर्थ केस है दैट इज यूजिंग अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस पार्टनर्स टू misappropriate the funds in the garb of making a business transaction and thereafter siphoning of the fund। और यहां पर मिस्टर भरोसेलाल ने जो ये ट्रांजैक्शन की थी, मिस्टर भरोसेलाल सेंस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसके माइंड में जो आया था इन द न्यू वेंचर, because the foreign partner had no knowledge of the Indian regulation and how the SRA projects work and solely dependent on the local partner। तो बेस्ट जो चीज भरोसेलाल के माइंड में चल रही है वो डी पॉइंट है, यूजिंग अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस पार्टनर टू मिसअप्रोप्रिएट द फंड in the garb of making the business decisions, business transaction and thereafter siphoning of the funds। In the given case scenario, the main factor giving rise to risk of material misstatement, material misstatement का रिस्क कौन से फैक्टर से प्राइमरीली सामने आता है? एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ऑफ ओनर नहीं, ये पर्सनल का रीजन हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर हैविंग एक्सपीरियंस इन अनअर्थिंग ऑफ फ्रॉड नहीं। डिटीरियोरेटिंग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ओनर्स बिजनेस, ये एक रीजन बन सकता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। वल्नरेबिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑफ द फॉरेन पार्टनर ऑन द लोकल पार्टनर, इस पूरे सिचुएशन की अकॉर्डिंग तो डी इज द बेस्ट वन। दो सी पॉइंट भी ROMM की तरफ जाता है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वो डी पॉइंट है। अब देखो ये दोनों ही क्वेश्चन इस केस स्टडी के फैक्ट्स के बिना सॉल्व नहीं हो सकते थे। दैट्स व्हाई कि इस केस स्टडी के फैक्ट्स को पहले पढ़ना जरूरी था। बट कुछ केस स्टडी ऐसी होती हैं जहां पर बिना केस स्टडी के फैक्ट्स को स्टडी किए आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को भी करें तो कर पाएंगे, बट एग्जाम में कोशिश करिएगा एक बार पहले केस स्टडी को पढ़ लें, देयर आफ्टर फिर क्वेश्चंस पर चलें। नेक्स्ट, इन द गिवन केस सिनेरियो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग फॉर द ऑडिटर। अब वही चीज है, पर्सनल रीजंस नहीं देखने, इस सिचुएशन को देखते हुए बेस्ट वन आइडेंटिफाई करना है। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल ना, अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप टू साइफनिंग ऑफ द फंड, यही चीज लास्ट में लिखी थी। देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप टू मिसअप्रोप्रिएट द फंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग क्या है? अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप टू साइफनिंग ऑफ द फंड्स, कि मिस्टर भरोसेलाल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी के साथ करेगा, ऑब्जेक्टिव है साइफनिंग ऑफ द फंड्स, फंड्स की साइफनिंग को करना। फाइनेंशियल क्रंच, ये भी एक रेड फ्लैग है, बट बी से ज्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर केस स्टडी के फैक्ट्स को देखते हुए। डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओनर नहीं, ये तो है ही नहीं, तो बी और सी बनते हैं, उनमें से बेस्ट बी बनेगा। Which of the following is not a fraud risk factor? ओनर का डोमिनेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉड कराएगा। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड करने की कोशिश कर सकती है। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल बेशक पर्सनल रीजन है, लेकिन जब आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर को पढ़ते हो तो तीन तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमारे सामने आते हैं। एक आता है इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, दूसरा आता है रेशनलाइजेशन टू डू सो, और तीसरा आता है परसीव्ड अपॉर्चुनिटी।
तो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल आपके ऊपर प्रेशर है अपने मॉनेटरी खर्चों को कवर करने का। फ्रॉड रिस्क ड्यू टू नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, अगेन फ्लोटिंग ऑफ अ न्यू स्पेशल पर्पस व्हीकल इटसेल्फ। स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्होंने बनाया था रियल ट्रस्ट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 50% का एक फॉरेन पार्टनर लाए, एंड फॉरेन पार्टनर को कोई नॉलेज नहीं है इंडियन रेगुलेशन की और वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है लोकल पार्टनर पर। नाउ अब जो न्यू एसपीवी इन्होंने फ्लोट की है, एक कंपनी को बनाना, क्या वो एक फ्रॉड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है? क्या यहां पर कोई प्रेशर है या रेशनलाइजेशन या परसीव्ड अपॉर्चुनिटी? इन तीनों में से कोई भी पॉइंट इस डी ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा। जब मैं डोमिनेंट इन्फ्लुएंस की बात करता हूं, रेशनलाइजेशन के अंदर आ गया। जब मैं एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की बात करता हूं, प्रेशर, मॉनेटरी प्रेशर आ गया। नेचर ऑफ इंडस्ट्री की बात करता हूं तो उसके पास एक मौका हो गया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यदि आप डील करते हैं या इस तरह की एक्टिविटी में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और बहुत सारी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और खास तौर से तब जब आपका पार्टनर उसको लोकल रेगुलेशंस की नॉलेज नहीं है। सो डी इन तीनों में से किसी कैटेगरी में एज सच फिट नहीं हो रहा, तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सो ये केस स्टडी बेसिकली रिलेटेड पार्टी के ऊपर थी, बट कुछ एक्सटेंड तक 240 के पॉइंट जो फ्रॉड का स्टैंडर्ड है उसको भी इन्होंने कवर अप किया हुआ था। चलिए मूव करते हैं लास्ट केस स्टडी के ऊपर। 3 केस स्टडी हैं इस चैप्टर में। तीसरी केस स्टडी, Black and White is into the business of manufacturing ready-made garments in the Amritsar. It procures all the raw material required for its production from the Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. यहाँ से raw material खरीदते हैं. Sales market all the northern part of the country. Anu is the engagement partner of Maheshwari and company, appointed as the statutory auditor of the company. She called for a meeting of the engagement team to delegate work and responsibility. During the audit, engagement team come across the following facts. Woolen Private Limited is one of the vendor of the company from which the company has been purchasing the wool for many years on a current account basis. But no single purchase has been made in the last 9 months. Outstanding balance stand as it is in the books of account. Anu wants to confirm the balance and requests the CFO of the company to send a balance confirmation, to which he refuses and is not willing. It creates a doubt. आपका एक वेंडर जिससे आप बहुत सालों से वूल परचेज कर रहे हैं, लास्ट 9 मंथ में आपने उससे कोई परचेज नहीं की, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज सच खड़ा हुआ है और सीएफओ ने कंफर्मेशन लेने से मना कर दिया। फैशन जिंगो कस्टमर है कंपनी का, उसने अनु की पॉजिटिव बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे 505 के अकॉर्डिंग अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। Mr. X, one of the fashion designers, sold his designs to the company, but owing to a dispute, contract got cancelled, and now the both parties are under litigation in the court of law. Engagement team is guided as to the procedures to be designed and performed to identify this matter. Case of pending litigation and claims. CA Anu simultaneously seeks direct communication with the entity external legal counsel, sensing the risk of material misstatement. However, it ends up in vain as the external legal counsel refuses to comment. Perform alternate procedure. She is unable to obtain sufficient appropriate evidence in this regard through alternate procedure. Modify the opinion. General point है. The team document all the relevant information with respect to the above fact, and Anu issues the audit report accordingly. Question number 1. Fashion Jingo Limited has not responded to Anu request.
पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी गई थी फैशन जिंगो को। व्हाट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन? एसए 505 सिंपली कहता है परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर। परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर, कंसीडर इट एज ए नेगेटिव वन ना, गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। एडिशनल अल्टरनेट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किए बिना सीधा क्वालिफाइड पर कैसे चला जाऊं? विजिट द कस्टमर कंपनी प्रीमाइसिस हरसेल्फ एंड कंफर्म द बैलेंस। ऐसे ही किसी के प्रीमाइसिस को डायरेक्टली विजिट कर लोगे, ये चीज अलाउड नहीं होती। ए आंसर। विद रिस्पेक्ट टू एडवोकेट चड्डा कोल्ड शोल्डर टू सीए अन्नू रिक्वेस्ट, व्हाट शी शुड डू? एडवोकेट चड्डा साहब कहां थे? अच्छा, लास्ट वन। एडवोकेट चड्डा साहब ने जवाब देने से मना कर दिया। मिस्टर चड्डा रिफ्यूजेस टू कमेंट। तो ऑल्टरनेट करो। ऑल्टरनेट से भी बात नहीं बनती, मॉडिफाई द ओपिनियन। मॉडिफाई द ओपिनियन। अनक्वालिफाइड नहीं दूंगा, डिस्क्लेमर पता नहीं कितनी सेंसिटिविटी है इस मैटर की, विड्रॉ नहीं। बेस्ट वन, मॉडिफाई द ओपिनियन। What should be the Anu first and foremost response in case of request made relating to balance confirmation from Woolen Private Limited? Woolen Private Limited पहला केस। Ask the management for the reasons why the CFO is refusing, whether the reasons are genuine or not. Determine the reasonableness of the reasons given by the CFO. Perform alternate audit procedure. But if the reasons given by the CFO are not appropriate, कंसीडर इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिट ओपिनियन। तो देखो अभी सिचुएशन में क्या क्या कहता है, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। सीधे पहले मैनेजमेंट से रीजन पूछ लो, विड्रॉ इतनी जल्दी? कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, सीएफओ खुद ही टीसीडब्ल्यूजी है। इंक्वायर एज टू द रीजंस बिहाइंड द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स and seek audit evidence as to the validity and reasonableness of the reasons given by the CFO. This is the best one answer. C point. Next, which of the following procedures will not be performed by the engagement team while dealing with the case of Mr. X, Mr. X, Mr. X, Mr. X, fashion designer? कॉन्ट्रैक्ट उसने अपने डिजाइन बेचे थे कंपनी को, डिस्प्यूट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, पार्टीज अंडर लिटिगेशन है। देखो अब इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से इंक्वायरी का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दैट इज ए पार्टी अंडर डिस्प्यूट। रिव्यूइंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग बिल्कुल ठीक है। रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बचा क्या? मिस्टर एक्स से इंक्वायरी जिससे डिस्प्यूट चल रहा है वो परफॉर्म नहीं किया जाना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। So this is about the case studies of chapter number 5. 3 केस स्टडीज थी, ऐसे 500, 501, 505, 510, 530 पर तो कुछ नहीं आया इसमें, एंड 550। इसके बाद चैप्टर 6 की केस स्टडी आएगी, उन्हें नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्ड करेंगे। सो चैप्टर 5 तक की हमारी सारी की सारी केस स्टडीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इन केस स्टडीज का यही है कि इनमें से कई बार कोई जनरल एमसीक्यूज बन सकता है और इस बहाने कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं जो डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर करेंगे ओवर और नेक्स्ट सेशन में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीशन एंड रिव्यू की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।